Yes, good afternoon to all of you. Take out your English literature book, all of you. Take out your English literature book. Today we will discuss about the chapter 4, My Experiment with Truth. My Experiment with Truth. Yes, so shall we start? Shall we start the chapter? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So before we should start the chapter, we should go through the pre-reading task of this chapter. So let's see the pre-reading task. To err is human. All human being makes mistake, but the best of a lot learn from their mistake and improve. To err is human. पता है आपको ना, इंसान जो है वो भगवान नहीं हो सकता, उनसे कभी ना कभी गलतियां होती ही हैं. That's why it is said that to err is human. All human being makes mistake, but the good thing is that you should learn something from your mistake and you should not repeat your mistake again in your life. यही सबसे बड़ा लेसन होता है जो हमें अपने एरर से सीखना होता है. हमें अपने मिस्टेक से सीखना होता है. हम मिस्टेक कर सकते हैं, नो डाउट. इंसान है, गलतियां होती है हमसे. Nobody is perfect in this whole world, but what we should learn from our mistake. जो भी गलतियां हुई है वो हमें यही सिखाती है, हमें अपने मिस्टेक से यही सीखने को मिलता है that we should never repeat our mistake. हमें अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करने चाहिए लाइफ में, और जो गलतियां हुई हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. तो the first question is, have you ever made any mistake? क्या आप लोगों से कभी कोई मिस्टेक्स हुआ है? बताइए आप लोग. Yes, ma'am. Yes, definitely. Of course, we all are human beings and we are making so much mistakes every day. Now the second question is, what did you learn from it? Have you learned anything from your mistake? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. definitely. Everyone is learning from their mistakes, because mistakes is that thing from which we can learn. मिस्टेक ही वो चीज है जिससे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं. एक बार गलती होगी, पता चलेगा अच्छा नहीं, यहाँ पे गलत हो गया है, फिर से हम उसे करेंगे, फिर से बनाएंगे, दोबारा बाद में वो मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फाइंड अ ड्रॉबैक और वीकनेस? क्या करते हो आप जब कोई आप अपनी कमी देखते हो, कोई कमजोरी देखते हो? तो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ. अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो. ट्राई टू फॉरगेट इट एंड डोंट केयर एट ऑल. आप उसे भूल जाने की कोशिश करते हो और आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते हो. ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर्स. दूसरे से छिपाने की कोशिश करते हो. गलती हो गई है तो चलो मम्मी पापा से छिपा लेते हैं, फ्रेंड से छिपा लेते हैं. ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स. या फिर फोर्थ ऑप्शन, आप अपने ब्लेम्स को दूसरे के ऊपर डाल देते हो. बताइए क्या करते हो आप लोग? बताइए. मैम प्रूफ कर लेते हैं. ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ. यस, डेफिनेटली. हम अपनी गलतियों से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना. और मैम गलतियों को एक्सेप्ट भी करते हैं. यस, वी आर एक्सेप्टिंग आवर मिस्टेक. इफ वी विल एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, आफ्टर देन ओनली वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ. अगर हम लोग अपनी गलती को, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम अपने मिस्टेक्स को सुधार पाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे. इफ वी विल blame on others, we will never learn anything from our mistake. अगर हम अपने मिस्टेक्स को दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देंगे तो हम कभी अपने मिस्टेक से कुछ सीख नहीं पाएंगे बेटा. इसीलिए always try to accept your mistake and always try to improve yourself from your mistake. Never try to repeat your mistake. After then only you will be able to improve yourself. So now let's start the chapter. Basically, this is the story of Mahatma Gandhi, and after going through this chapter, you will come to know that how Mahatma Gandhi is also once committed a mistake, and but the best part is that he accepted his mistake in front of his father.
In front of his father, he accepted his mistake, and in fact, he asked for the punishment so that he could never repeat his mistake in life. So let's proceed the chapter. I must have been about 7 when I was put into a primary school, and I can well relocate those days, including the names and other particulars of the student who taught, of the teachers who taught me. महात्मा गांधी बता रहे हैं that time I was 7 years old. उस टाइम वो 7 साल के थे when his parents admitted him in the school. जब उनके पेरेंट्स ने उनको स्कूल में एडमिशन कराया. वो बोलते हैं कि आज भी उस दिन उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरे दिमाग में यादें ताजा हो जाती हैं. मेमोरी जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है. Even I could learn the class name of the classmates and even teacher who taught me. आज भी मैं जब याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मेरे क्लासमेट्स के नेम, मुझे मेरे फ्रेंड्स के नेम, इवन मेरे टीचर्स के नेम याद आ जाते हैं जिन्होंने मुझे क्लास में पढ़ाया था. I don't remember having ever told a lie either to my teacher or to my schoolmates. मुझे ये याद नहीं कि मैंने कभी अपने लाइफ में झूठ बोला, या तो अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से, या फिर अपने किसी स्कूलमेट से. I used to be very shy and avoided all company. मैं बहुत साई हुआ करता था, बहुत शर्मीला हुआ करता था, और मुझे किसी की कंपनी पसंद नहीं थी. चूंकि वो शर्मीले थे इसलिए उन्हें किसी के साथ बात करना, किसी के साथ रहना पसंद नहीं था. वो अकेले ही एंजॉय करते थे. My books and my lessons were my sole companion. Who was his best friend? His book and his lesson. उनका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उनका बुक और उनका लेसन था. There were no friends of him. The only best friend who he has was his lesson and his books. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. जैसे ही स्कूल का टाइम हुआ दौड़ के स्कूल पहुंच गए, और जैसे ही बेल रिंग हुई छुट्टी की दौड़ के घर आ गए. दैट वाज हिज डेली रूटीन. डेली जो उनका हैबिट था वो यही था कि जैसे ही उनकी घंटी लगी वो दौड़ के स्कूल पहुंच गए रस करते हुए, और जैसे ही उनकी बेल रिंग हुई छुट्टी की वो दौड़ते भागते कूदते फांदते घर आ गए. दिस वाज हिज डेली रूटीन. यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई? बताइए. Yes, ma'am. 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 Okay, then let's proceed forward. चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. ऐसा 2 इंसिडेंट हुआ था उनके लाइफ में, मतलब ड्यूरिंग स्कूल डेज ऐसी 2 इंसिडेंट हुई थी जो उनके लाइफ टाइम उनके मेमोरी में रह गई. माइंड में उनका हमेशा के लिए वो मेमोरी बन के रह गया. As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. जब मैं स्कूल टाइम में जब मैं स्कूल जाया करता था तो शायद ही स्कूल के अलावा कोई बुक थी जिसको पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड था. मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन एक बार एक बुक जो मेरे फादर लाए थे उस पे मेरी नजर जाके टिक गई. इट वॉज सरवन पितृभक्ति नाटक, a play about Sarvan's devotions to his father. उस बुक का नाम क्या था? It was Sarvan's पितृभक्ति. सरवन का स्टोरी हम लोग सबको ही जानते हैं, जो अपने माता पिता के प्रति काफी डिवोटेड थे. उनकी स्टोरी बुक थी वो. I read it with intense interest. जैसे ही मैंने उस बुक को देखा मुझे उसे पढ़ने की एकदम कीन इंटरेस्ट हुआ. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, एक्सट्रीमली मैं मतलब कि इंटरेस्टेड हो गया उसको पढ़ने के लिए. तो दैट्स व्हाई आई रीड द होल बुक विद अ कीन इंटरेस्ट. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के, इंटेंस इंटरेस्ट लेकर के मैंने उस बुक को पढ़ा, डीप इंटरेस्ट लेकर के. वन पिक्चर इन द बुक शोड Sarvan कैरिंग हिज पेरेंट ऑन पिलग्रिमेज. एक पिक्चर था उस बुक में जो ये शो कर रहा था, जो देखिए आपके पेज नंबर 20 में भी है, जिसमें दिख रहा है कि श्रवण जो है वो
अपने कांधे पर अपने पेरेंट्स को बैठा करके पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। और जर्नी टू अ होली प्लेस, पिलग्रिमेज मतलब होता है अ जर्नी टू अ होली प्लेस, जिसको हम लोग हिंदी में तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्रवण जो थे, ये सच का स्टोरी है। श्रवण के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। श्रवण was the person who was very much devoted towards their parents. वो अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड थे। अपने माता पिता को ही उन्होंने भगवान मान लिया था और वो उनकी बहुत ज्यादा डिवोटेड होकर के सेवा करते थे। तो उनके माता पिता जो थे, उनको जब पिलग्रिमेज जाने की, तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई थी, तो श्रवण जी ने उन्हें अपने कांधे पे बैठा के तराजू में दोनों की तरफ, एक तरफ माता को, एक तरफ पिता को बैठा करके, वो अपने कांधे पे बैठा करके पैदल चल करके अपने माता पिता को उन्होंने तीर्थ यात्रा करवाई थी। तो जब गांधी जी जब इस बुक को पढ़ रहे थे, तो इस पिक्चर को देख करके वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए थे, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे इस बुक को, इस बुक के इस पिक्चर को देख करके। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। उस बुक को पढ़ने के बाद उस बुक का और इस पिक्चर का ऐसा असर हुआ महात्मा गांधी के दिमाग पे कि वो कभी ना मरने वाली मेमोरी उनके दिमाग में छप गई। इस चीज को वो कभी भूल नहीं पाए। He is an example for you to copy, I said to myself. और उस बुक को पढ़ने के बाद, उस पिक्चर को देखने के बाद, गांधी जी ने अपने आप से कहा that he is an example for you to copy. यही वो एग्जाम्पल है महात्मा गांधी जिसको तुम अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हो। ये बात महात्मा गांधी ने अपने आप से कही जब उन्होंने श्रवण की भक्ति को देखा अपने माता पिता के प्रति। When he read the devotion of Shravan towards their parent, then he said to himself, then Mahatma Gandhi said to himself that he is the person whom I should copy. ये वही इंसान है जिसे मुझे कॉपी करना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. Any doubt up to this? To anyone? No, ma'am. No, ma'am. Okay, then let's proceed forward. Another similar play. Yes. Who's this? Anyone wants to ask anything? No, ma'am. Okay, then let's proceed forward. Another similar play, Harishchandra captured my heart. एक और प्ले था जो उनके फादर लाए थे और उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा. That was, first one is Sarvan's पितृ भक्ति and the second one is हरिश्चंद्र. हरिश्चंद्र के बारे में भी आपने सुना होगा. आप कभी भी अगर बोलते हो किसी से, आप देखते होगे ऐसा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता होगा, अच्छा कभी झूठ नहीं बोलता, हरिश्चंद्र है क्या? हरिश्चंद्र जो थे उनका नाम ही था हरिश्चंद्र. कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला, लाइफ में कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला. उनका नाम ही था सत्यवादी हरिश्चंद्र. तो हरिश्चंद्र का एक प्ले था जो दोबारा उन्होंने पढ़ा, दोबारा जो अपने बुक, जो मतलब स्कूल के बुक के अलावा जो उन्होंने किसी बुक में इंटरेस्ट दिखाया वो था हरिश्चंद्र, जो कि दोबारा जिसने उनका दिल जीत लिया. Why should not all be the truthful like हरिश्चंद्र? और उस बुक को पढ़ने के बाद उनके दिमाग में सबसे पहली बात जो ये आई वो ये आई कि क्यों सभी लोग सच्चे नहीं हो जाते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह? क्यों आखिर लोग झूठ बोलते हैं? Why everyone can't speak truth? क्यों सभी लोग सच नहीं बोलते हैं? Was the question I asked myself day and night. हर दिन हर रात हरिश्चंद्र की का बुक पढ़ने के बाद महात्मा गांधी यही अपने आप से क्वेश्चन करते थे. श्रेया राज स्विच ऑफ योर माइक. श्रेया राज, यस. तो हरिश्चंद्र की बुक पढ़ने के बाद हर दिन महात्मा गांधी अपने आप से यही क्वेश्चन करते थे कि क्यों लोग आखिर सच नहीं बोलते हैं. To follow truth and to go through the all ordeals Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. पूरी सच्चाई को जानने के बाद, पूरे बुक को पढ़ने के बाद और उनके पेनफुल एक्सपीरियंस को जानने के बाद मुझे यही लगा कि ये दूसरा इंसान है जिसने उनको इंस्पायर किया.
कि मतलब सबसे पहला इंसान जिन्होंने उनको इंस्पायर किया वो थे श्रवण जी, जिनके डिवोशन को देख करके टुवर्ड्स देयर पेरेंट वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। और दूसरा इंसान जिनसे वो इम्प्रेस्ड हुए थे, जिनको अपना उन्होंने आइडल मान लिया था, वो थे सत्यवादी हरिश्चंद्र। There was another such incident during the time when I was in 7th standard. Dorbaji Gimi, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. एक इंसिडेंट उनके लाइफ में इसके बाद हुआ जब वो क्लास 7th में थे। वो अपने हेडमास्टर के बारे में बता रहे थे जिनका नाम दोरबाजी गिमी था। वो बताते हैं कि उनके जो हेडमास्टर थे वो बॉयज के बीच में बहुत पॉपुलर थे। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड थे, तो अपने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से वो जाने जाते थे। और साथ ही साथ along with that he is not only a disciplined teacher but along with that he is a very good teacher also with a good behavior and good teaching method. उनका जो मेथड था पढ़ाने का, समझाने का, वो बहुत ही अच्छा था। That's why he was known as a good teacher. वो एक बहुत अच्छे टीचर्स के नाम से भी जाने जाते थे। He had made gymnastic and cricket compulsory I disliked both. उसके बाद महात्मा गांधी जी उनके बारे में बताते हैं कि स्कूल में उन्होंने जिम्नास्ट को और क्रिकेट को, ये दो चीजों को कंपलसरी कर दिया था। और गांधी जी को ये दोनों ही चीजें नहीं पसंद थी। दोनों चीजों को गांधी जी पसंद नहीं करते थे। एक्चुअली इसको नहीं पसंद करने के पीछे उनका एक मिथ था जो कि गलत था। उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये दोनों चीजों को हेडमास्टर जो थे उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि यस, gymnastics and cricket is compulsory to all the boys of the student and these both things was mostly disliked by the महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये दोनों चीजों को पसंद नहीं किया जाता था। ये दोनों चीजों में महात्मा गांधी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। Yes, I never took part in any exercise before they were made compulsory. महात्मा गांधी अपने बारे में बताते हैं कि मैं तब तक किसी चीज में पार्ट नहीं लेता था, पढ़ाई के अलावा किसी भी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेता था जब तक उसे कंपलसरी नहीं बना दिया जाता था। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे सीसीए एक्टिविटी होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटी होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट उसमें ऐसे होते हैं कि वो तब तक उसमें पार्ट नहीं लेते हैं जब तक उसको कंपलसरी फॉर ऑल नहीं कर दिया जाता है। जब तक उसको कंपलसरी फॉर ऑल नहीं किया जाता है तब तक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप भी जानते होंगे, आपके क्लास में भी होंगे, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं उस चीज में पार्ट लेने का, पार्टिसिपेट करने का। तो ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी भी थे, कभी किसी एक्सरसाइज में वो इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करते थे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ाई के अलावा। वो सोचते थे ऑल दीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। I then had a false notion that gymnasts had nothing to do with education. अपने बारे में ये बता रहे हैं कि मैं क्यों पार्ट नहीं लेता था, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में एक गलत धारणा बनी हुई थी कि जिम्नास्ट को एजुकेशन से कुछ नहीं करना है। जिम्नास्ट शुड नथिंग टू बी डू विथ एजुकेशन। जिम्नास्ट को एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई में खेल का क्या मतलब बनता है। ये मिथ, गलत धारणा उनके दिमाग में बनी हुई थी। That's why he was not taking interest even a single exercise which was not compulsory in the school. Today I know that physical training is as important as mental training, but today he know that physical training is as compulsory as mental training. आज की डेट की अगर बात की जाए तो वो बताते हैं, जब ये बुक लिख रहे हैं तब की बात वो बता रहे हैं कि लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ that yes, of course sports and physical exercise is also as much as important as the education. आज वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उस समय मेरे दिमाग में ये गलत धारणा थी कि मैं समझता था कि खेलना कूदना जरूरी नहीं है। बट नाउ टुडे आई अंडरस्टैंड दैट यस, फिजिकल ट्रेनिंग इज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज द मेंटल ट्रेनिंग। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। चलिए
तो फिर आगे बढ़ते हैं। The reason for my dislike for gymnastic was my keen desire to serve as nurse to my father. एक और रीजन था जिसकी वजह से वो जिमनास्ट को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। एंड द रीजन वाज दैट कि जिमनास्ट को वो बहुत ज्यादा इसलिए भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद वो अपने फादर को असिस्ट करना चाहते थे। उनके फादर के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता था, तो वो चाहते थे कि वो घर जा करके अपने फादर को नर्स करे, अपने फादर को असिस्ट करे, उनका असिस्टेंट बने, उनको वो सर्विस प्रोवाइड करे। इसलिए भी वो बहुत ज्यादा जिमनास्ट को पसंद नहीं करते थे। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. जैसे ही स्कूल क्लोज होती थी, स्कूल की बेल बजती थी डिस्पर्सल की, मैं दौड़ता हुआ घर जाता था ताकि मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूं। Now it happened that on one Saturday I had to go from home to the school for gymnast at 4 o'clock in the afternoon. एक बार की बात है, सैटरडे का दिन था और मुझे घर से वापस स्कूल जाना था 4 बजे शाम में जिमनास्ट के लिए। जिमनास्टिक जैसे कि बताया मैंने कि उनके हेडमास्टर सर ने जो था वो कंपलसरी कर दिया था क्रिकेट और जिमनास्ट को। तो सैटरडे का दिन था और 4 बजे शाम में सभी बच्चों को स्कूल में रिकलेक्ट होना था जिमनास्ट के लिए। 4 बजे शाम की बात है। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी। महात्मा गांधी के पास उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी, उनके पास घड़ी नहीं थी और आकाश में बादल छाए हुए थे, क्लाउड थे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनको धोखा हो गया। मतलब क्लाउड ने उनको डाइवर्ट कर दिया, धोखा दे दिया कि अरे अभी तो लग रहा है कि टाइम है, काफी बादल छाए हुए हैं। When I reached the school, all the boys had already left. जब वो स्कूल पहुंचे सैटरडे के दिन, एक दिन जब जिस दिन 4 बजे बुलाया गया था, जब वो स्कूल पहुंचे, वो इतना लेट स्कूल पहुंचे कि सभी बच्चे आके जिमनास्ट करके और वापस जा चुके थे अपने घर को। The next day, on being asked the reason for absence, I told Mr. Gimme what had happened. Next day, जब वो दोबारा स्कूल गए, as I told you earlier that the headmaster of his school had already make it compulsory for all students. What? Gymnast and cricket. So, for being absent, headmaster asked him, why you was absent yesterday? Why you had not come for gymnast at 4 o'clock? जब उनसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि क्यों तुम एब्सेंट थे, क्यों तुम नहीं आए कल, उन्होंने जो भी बात सच्चाई थी बता दी कि भाई हम आए थे लेकिन मेरे पास घड़ी नहीं थी और क्लाउड ने मुझे डिसीव किया, धोखा दिया। मैं स्कूल पहुंचा लेकिन जब तक मैं स्कूल पहुंचा तब तक सभी तब तक सारे स्टूडेंट्स जो थे वो जा चुके थे, ऐसा उन्होंने बताया। He refused to believe me. लेकिन उनकी बात सुन करके उनके जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने विश्वास नहीं किया, नहीं, you are telling a lie, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना लेट से तुम आओगे कि सभी लोग खेल के चले गए। I was convicted of lying that deeply pained me. मुझे झूठ बोलने की सजा मिली और इसका मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ, मैं बहुत डीपली पेन फील कर रहा था क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं बोला था। जब भी आपको कभी बिना किसी गलती के पनिशमेंट मिलता है तो आप डीपली हर्ट होते हो या नहीं, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Of course, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब कोई गलती ना करे और उसकी सजा मिल जाए तो बहुत ज्यादा रोना आता है, बहुत ज्यादा डीपली हर्ट होते हैं हम। तो ठीक उसी तरह से हुआ था महात्मा गांधी के साथ। उन्होंने तो सच कहा था कि भाई मैं आया था लेकिन मेरे आने के पहले सारे बच्चे जा चुके थे, लेकिन हेडमास्टर जो थे वो उनकी बातों को विश्वास नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने के लिए उन्हें सजा मिल गई, पनिशमेंट उनको मिल गया। How was I to prove my innocence? There was no way. मेरे पास कोई तरीका नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था जिससे मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकूं, और मैं क्या हुआ, कल्प्रिट बन गया। I learned that a man of truth must also be a man of care.
उस दिन मुझे एक और बात समझ में आई कि सिर्फ सच बोलने से कुछ नहीं होता है, बल्कि सच्चाई के साथ आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा। अ मैन ऑफ ट्रुथ शुड बी अ मैन ऑफ केयर। केयरफुली, अगर वो केयरफुल रहते उस दिन तो उनको लेट नहीं होता, टाइम पे पहुंच जाते, बट ही वॉज नॉट केयरफुल रिगार्डिंग टाइम, सो ही वॉज लेट, एंड after reaching late to the school, next day he got punishment for telling a lie. तो सिर्फ सच बोलने से कुछ नहीं होता है, सच के साथ आपको केयरफुल होना होगा, अलर्ट होना होगा, अटेंटिव भी रहना होगा। This was the first and the last instance of my carelessness in school. और उसी दिन मैंने दिमाग में ये बात को बांध लिया, गांठ बना लिया कि a man of truth should be the man of care. तो मैं सिर्फ सच्चाई बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एक मिनट, सिर्फ सच्चाई बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको केयरफुल और अटेंटिव भी रहना पड़ेगा। उसी दिन मैंने ये बात अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज के बाद से मैं बहुत ज्यादा केयरफुल अटेंटिव रहूंगा। केयरलेसनेस की वजह से मेरे से कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक स्टोरी सबको अच्छे से समझ में आया? Yes, yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, but there is another neglect for which I am still paying the penalty. लेकिन उसके साथ साथ बचपन में एक और नेग्लिजेंसी थी, एक और मेरे से गलती हुई थी कि मैंने एक चीज को और नेग्लेक्ट किया था, और उसकी पेनल्टी मैं अभी तक लाइफ में भर रहा हूँ। पेनल्टी मतलब समझते हो ना, फाइन, मतलब उस बचपन की एक गलती का हर्जाना मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। ऐसी कौन सी गलती थी, ऐसा कौन सा नेग्लिजेंसी था जो उन्होंने किया था? I don't know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. मुझे नहीं पता कब मेरे दिमाग में ये गलत धारणा आ गई, एक मिथ आ गया मेरे दिमाग में कि good handwriting is nothing to do with education. अच्छे हैंडराइटिंग होना कोई बड़ी चीज नहीं है एजुकेशन के लिए, बट ये चीज मुझे तब समझ में आई जब मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड गए तो क्या हुआ उनके साथ? When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyer and young men. जब मैं साउथ अफ्रीका गया तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। I saw very good handwriting of a young man and a lawyer. एक लॉयर के और एक यंग मैन के उन्होंने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग देखे। I was ashamed of myself and repented of my neglect. मुझे उनकी हैंडराइटिंग देख के, अपनी हैंडराइटिंग के बारे में सोच के इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं बचपन की नेग्लिजेंसी को आज भी कोसता हूँ कि अगर बचपन में मैंने ध्यान दिया होता तो मेरी हैंडराइटिंग जो है वो गुड होती, लेकिन टुडे आई हैव अ वेरी वर्स्ट हैंडराइटिंग। आई सॉ दैट बैड हैंडराइटिंग was regarded as a sign of imperfect education. मैंने ये देखा है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉपर एजुकेशन, गुड एजुकेशन नहीं मिला है। ये भी एक धारणा है एक तरह की, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हाँ, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी तो एक ही बार में जब भी आपका कोई हैंडराइटिंग देखेंगे, कोई भी एल्डर पर्सन, टीचर, प्रिंसिपल, कोई भी, तो आपके बारे में गुड इमेज वहीं से बनना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग गलत, खराब होगी, आप बहुत भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, टैलेंटेड होंगे, टॉपर होंगे, लेकिन पहली धारणा जो आपको देख करके, आपके हैंडराइटिंग को देखकर बनेगी, वो यही बनेगी कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं होगा, इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये भी एक तरह की धारणा है, इसको मतलब ये 100% ट्रुथ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। हैंडराइटिंग देख करके फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। इवन आप भी इस चीज को बहुत बार देखे होंगे कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, अगर वो थोड़ा गलत भी लिखता है तो एग्जामिनेशन वगैरह में उसे मार्क्स 100 से ज्यादा आ जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ हिज और हर गुड हैंडराइटिंग। और जिसकी हैंडराइटिंग खराब है, उसने सब कुछ भी अच्छा लिखा है और टीचर्स को समझ में नहीं आ रहे हैं कि उसने क्या लिखा है, तो कुछ मार्क्स उसके जरूर डिडक्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, बताइए? Yes, ma'am.
इसीलिए कहा जाता है कि हैंडराइटिंग हमेशा अच्छा रहना चाहिए। और यही बात महात्मा गांधी को तब रियलाइज हुआ जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक लॉयर और एक यंग मैन के हैंडराइटिंग को देखा। उनकी हैंडराइटिंग को देख के इन्हें अपनी हैंडराइटिंग पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, और साथ ही साथ इन्हें ये रियलाइज हुआ कि बचपन में अगर उन्होंने हैंडराइटिंग को लेकर के नेग्लिजेंसी नहीं की होती, थोड़ा ध्यान दिया होता, थोड़े अलर्ट होते, तो उनके हैंडराइटिंग भी आज बहुत अच्छी होती। आगे वो बताते हैं, आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट, बहुत लेट हो चुका था। हैंडराइटिंग सुधारने का भी एक समय होता है, जब आपका बहुत ज्यादा एज हो जाएगा, जैसे अभी आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी, लेकिन चाह के भी मैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज नाउ इट्स टू लेट। हमारे पढ़ने का लिखने का समय चला गया, अब हम लोग पढ़ाते हैं, तो नाउ वी हैव नो टाइम टू इम्प्रूव आवर हैंडराइटिंग, और सुधरेगी भी नहीं क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है उस चीज को करते हुए। लेकिन अभी आपकी हैंडराइटिंग सुधर सकती है। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है और अगर अभी से भी आप ध्यान दोगे तो यू कैन इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। सो वही बात थी, जब उनको रियलाइज हुआ कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मुझे अपनी हैंडराइटिंग को सुधारना चाहिए, उन्होंने चाहकर भी अपने हैंडराइटिंग को सुधार नहीं पाया क्योंकि बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका था। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ। मेरे बचपन में, मेरे जवानी में, मेरे बचपन में मैंने जो नेग्लिजेंसी दिखाई उसको मैं आज तक रिपे कर रहा हूँ और मैं उसे सुधार नहीं पाया। यहाँ तक स्टोरी सबको समझ में आया अच्छे से? बेटा बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब थोड़ा सा बचा हुआ है एक पैरा, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि अब टाइम आउट का ऑप्शन आ रहा है, टाइम आउट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास भी है मेरा। सो वी विल अगेन प्रोसीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको में आगे बढ़ेंगे। कल इस चैप्टर के को कंप्लीट कर लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा, इसके पहले एक पोयम है चैप्टर 3 में, द लीजर, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. दोनों Yes, काम कल ma'am. हो जाएगा। यस, कल दोनों Yes, काम हो ma'am. जाएगा, ये चैप्टर भी कंक्लूड हो जाएगा और साथ में जो Ma'am, पोयम है उसको भी कर लेंगे। यस, योर होमवर्क इज, ma'am. yes, yes, listen to me first. Your homework is read this chapter, underline the tough word and write down all the tough word with their English word meaning with the help of your dictionary in your English fair copy. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. any doubt? क्या? होमवर्क है बेटा, आपको चैप्टर को रीड करना है, अंडरलाइन करने हैं टफ वर्ड को, और टफ वर्ड के जितने भी अंडरलाइन आपने किए हैं उनको आपको उनके वर्ड मीनिंग डिक्शनरी के हेल्प से खोज करके और अपने कॉपी में लिखने हैं। बट यू हैव टू राइट ओनली इंग्लिश वर्ड मीनिंग, यू आर नॉट अलाउड टू राइट हिंदी वर्ड मीनिंग। हिंदी वर्ड मीनिंग को आप लिखिए, पढ़िए, याद करिए, बट यू डोंट हैव टू राइट हिंदी वर्ड मीनिंग इन योर इंग्लिश कॉपी। ओनली यू हैव टू राइट इंग्लिश वर्ड मीनिंग in your English copy. Okay, is that clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Is there ma'am. any doubt? Is there any doubt to anyone? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, then we will again meet in Ma'am. the next class. In the next class, we will try to complete this chapter. Along with that, we will start chapter 3, the poem, The Leisure. Okay. So till then, thank you and have a nice day. Bye bye to all of you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.